So let's begin with the discussion of FLT 13 mock CAT H3 quant section. Starting with question number 1 and going ahead with the selection of questions. Okay. Question number 1. Something from time and work. Ideally, you should have attempted it. Question number 2. This is something that I have taught to Vidyarananda students in the last session only, and this test was taken before that, so better you could have skipped it. Question number 1 part 1 में डाल दीजिए. Question number 2 part 2 में डाल दीजिए because skipping it for now. Question number 3 सीरीज का लग रहा है but complicated होगा because basic series तो देंगे नहीं, तो skipping it for now part 2 में डाल दीजिए. Question number 4 allegation mixture 100% attempted it part 1 में डाल दीजिए. Question number 5 geometry skipping it for now part 3 में डाल दीजिए. Question number 6 again allegation mixture you should have attempted it part 1 में डाल दीजिए. Question number 7 I'm not sure whether I had discussed it before the test, so ideally skipping it for now part 2 में डाल दीजिए. Question number 8 something from linear equations मेरे हिसाब से, so skipping it for now part 2 में डाल दीजिए. Not going to be an easier one. Question number 9 ratio से related है, मेरे हिसाब से relatively easy होगा, so you could have attempted it part 1 में डाल दीजिए. Question number 10 something from mensuration, skipping it for now part 3 में डाल दीजिए. Question number 11 something from profit loss, but basically how many combinations of prices, skipping it for now because number of solutions पूछा गया. हो सकता है easy हो, but skipping it for now part 2 में डाल दीजिए. Question number 12 ratio से related लग रहा है, you should have attempted it part 1 में डाल दीजिए. Question number 13 something from allegation mixture, you should have attempted it part 1 में डाल दीजिए. Question number 14 permutation combination, but इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने किए हुए हैं, so ideally could have attempted it part 1 में डाल दीजिए. Question number 15 the equations and seems to be a difficult one, skipping it for now part 2 में डाल दीजिए. Question number 16 something from percentages, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, तो मैं परसेंटेज का होने के बाद भी I'm skipping it for now. हो सकता है easy हो, but skipping it for now part 2 में डाल दीजिए. Question number 17 something from I guess allegations and mixtures again. I should have attempted it, so part 1 में डाल दीजिए. Question number 18 something from probability. Could have skipped it for now part 2 में डाल दीजिए. Question number 19 skipping it for now functions है, part 3 में डाल दीजिए. Question number 20 SICI 100% I should have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. Question number 21 something from PNC probably, so yes you could have attempted it because this is something that we have already done in the past, part 1 में डाल दीजिए. And question number 22 something from log seems to be a difficult one, skipping it for now part 2 में डाल दीजिए. So let's start with the questions. सबसे पहले बताने का है किसी को? सर ऑप्शन से कर सकते थे. नो सर. ऑप्शन से कर दो सर, लेकिन ये एक बार ही पूछ लो ना, 4 बार क्यों पूछ रहे हो एक ही बार? समझ गए सर? एक बार आवाज नहीं आई थी, क्या बोला आपने? अब आई ना आवाज. ये इको क्यों होता है तुम्हारा बार बार यार? सॉरी सर. चलो बताने का है. सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने ऑप्शन से करा था तो एक बार में बैठ गया था. हाँ ऑप्शन से कर सकते हैं, वो एक बार में शायद लकीली इसलिए बैठ गया बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, वैसे नहीं बैठता. सोल्यूशन प्रॉपर चाहिए तो वी कैन डिस्कस अपॉन इट, एल्स विल गो अहेड. और अगर चाहिए तो बता दो मैं क्वेश्चन भी रीड करूंगा. बता दीजिए. बताने का ठीक है. A contractor Abhay Singh employed some man to do a piece of work which can be done in 16 man in 14 days. At the end of 5 days, 7 of the man stopped working, and 3 days later, half of the remainder stopped working. The rest finished the work in 5 days. The number of man originally employed. ठीक है. देखिए टीम वर्क का केस है, आया ना? Yes, sir. First case में they were 16 man working for 14 days. This is the total work to be done, right? How many men started working at the beginning? 16. अच्छा sorry, X men. I don't know that. अपने को नहीं पता है. X is the correct answer. Reason being कि अगर से यहाँ से 16 ले लोगे तो फिर इसका मतलब क्या है? What is the original number of man stopped, man originally employed? तो ये तो इन्होंने डेटा दे रखा है कि अगर 16 मैन काम करेंगे तो 14 दिन में काम हो जाएगा. And Yes, read sir. this properly. Employed some men to do a piece of work. We don't know which can be done by 16 men in 14 days, right? So let's assume they were X men who started working at the beginning and worked for 5 days. 5 दिन में इतना काम कर देंगे, उसके बाद 7 मैन छोड़ के चले गए. So it is X minus 7 which is left after
that Three. and they worked for 3 days. उसके बाद half of the remainder, इसके भी आधे लोग चले गए, तो आधे लोग बचे और इन्होंने 5 दिन काम किया और काम हो गया, राइट? Yes. This is, I guess, 224 equal to 5x plus 3x minus 21 plus 5x minus 35 upon 2. I'm taking the LCM. This is 8x, 8 to just 16x minus 42 plus 5x minus 35 equal to 448. This will be 21x equal to 448 में आप ऐड कर दो 77, कितना हो गया? 525. पक्का? हाँ सर. X आ गया 25. A very basic question. Ideally, should have attempted it. Could have taken less than 2 minutes to solve this question. Right? Clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Shall we go ahead with the next one? Shall I remove this solution? Yes, Yes. sir. Yes sir. Thank you. Yes. Next, please. Next question. 4. 4. 4. बताने का है किसी को? No, sir. So, Yes. No. No sir. नहीं sir, no sir. No sir. no, sir. नहीं बताने का. Next, please. 6. बताने का है किसी को? No, sir. No sir. No, sir. No, sir. नहीं बताने का. Next, please. 9. बताने का है किसी को? No, sir. No sir. Anyone Yes else? sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, No. sir. Doubt है. है, देख लेते हैं. Okay. In LS poll, वेदांती LS क्या होता है? लोकसभा. क्या बात है, बढ़िया. In LS polls, there were 4 parties. This. The ratio of number of married to unmarried candidates is this, and this respectively. An unmarried man is never married. On one fine day, all the candidates sat down for a debate. On one of the candidates of parties choose a referendum. The probabilities of choosing the parties are 2, 3, 2, 4. The candidates turned out to be unmarried. Find the probability that he or she is from Congress. Okay, fine. Now the important thing is that we were assuming it to be a question from ratios, but actually it's a question from probability. We'll just figure it out. करना कैसे है? Wrong selection of question from my part, but yes, going ahead. करना कैसे वो देख लेते हैं. अपने को पहले से पता है कि अनमैरिड है. अब अनमैरिड हो, इसके क्या केसेस है? देखो, वो पहली पार्टी से अनमैरिड हो, वो पहली पार्टी का हो, इसके चांसेस है. एनीवन? 2/11. 11. किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए. No, sir. No sir. सबको आ गया? पहली Yes, sir. पार्टी से हो और अनमैरिड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/5. 2/5. 2/5. 3/5. 2/5. और 2/5 होगा ना, अनमैरिड है. 2/5 unmarried. 2/5. अच्छा, सॉरी, मैंने रेशियो गलत ले लिया. ठीक है. प्लस दूसरी पार्टी से हो, 3/11. अनमैरिड हो, 3/5. 3/7. 7 sorry. तीसरी पार्टी से हो, 2/11. 2/11. अनमैरिड हो, 1/2. 1/2. चौथी पार्टी से हो, 4/11. 4/11. अनमैरिड हो. 3/5. 3/5. किस टोटल केसेस है? अपने को फेवरेबल क्या है कि वो चौथी पार्टी से हो और अनमैरिड. 3/5. ये सॉल्व कर 4 लेंगे by करके बताओ. कर लेंगे. हो जाएगा सर. हो जाएगा सर. सर यस सर. ये 4/11 कैसे? न्यूमरेटर वाला है, डिनोमिनेटर वाला? वो ये न्यूमरेटर वाला. न्यूमरेटर. देखो, टोटल केसेस है कि वो अनमैरिड है. फेवरेबल केस है कि वो कांग्रेस का बंदा है. तो मतलब फेवरेबल केस ये है कि वो फोर्थ पार्टी से बिलोंग करता हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/11, और वो अनमैरिड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5. क्लियर है? यस सर. Yes sir. चलो, लेट्स गो अहेड. Shall I remove the solution? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, going ahead. Next, please. 12. 12. बताने का है किसी को? No No sir. sir. No sir. Anyone? No sir.
नहीं। नेक्स्ट प्लीज। 13 बताने का है किसी को? नो सर। नो सर नो सर। No, sir. एनीवन एल्स? किसी को बताना है? तो इसका मतलब मैंने 100 लेके करा नहीं आया, 200 लिया तो तुक्के से आ गया, वो एलिगेशन से करके लिया तो नहीं आ रहा था। तो 200 नहीं लेने का है मालिक, ऐसे तो कहाँ तक लेते रहेंगे। समझते हैं। टू मिक्सेस वाटर एंड मिल्क, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क। Aruna mixes two mixtures A and B of water and milk. Concentration of milk in A is 10% and mixture B contains 9 liters of milk. The resultant contains 12% of milk. They are mixed in the ratio 3:1. सर एक छोटी सी बात बताओ, एलिगेशन रूल लगा दूं क्या? यस सर। यहाँ पे 10% है, ओवरऑल 12% है, यहाँ पे पता नहीं कितना परसेंट है, और ये है 3:1 का रेशियो। हाँ। तो ये 2 आया 10-12 से डिफरेंस। तो 1 के लिए 2 आया, 3 के लिए कितना आएगा? 6। और अगर ये 6 आया तो ये कितना हो गया? 18। ये 18 हो गया। 18% of B is milk, which is 9 liters of milk in B. कोई दिक्कत? सर। तो B हो गया 50 लीटर्स, हाँ है ना? 50। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. अगर B 50 हो गया तो A हो गया 150, बिकॉज 3:1 का रेशियो 150। था। नेट हो गया 200, हाँ या तो ना? Yes, मैंने ma'am. तो इसको हाँ नॉर्मली यस किया सर। था, बट सर एलिगेशन से आपने 2:6 कैसे लिया? मतलब रेशियो उसको बस डबल कर दिया ऐसा, Yes, ma'am. ताकि वो उस नंबर के बीच में बैठ जाए, 12, 10 और 18 के। बराबर बराबर, एकदम सही। आपका लेंथी था या छोटा था इससे? लेंदी था सर। इसीलिए तो बताया मैंने छोटे वाले से करने का। ओके सर। Anyone else having a doubt? नो सर। No, नो sir. सर। नो सर Shall I remove this यस solution? यस सर। Yes, sir. Going ahead, please. Next. 14 14। बताने का है? यस सर। यस यस सर। सर यस सर। यस कितनी सर। बार बताया हुआ है एक ही चीज को, कितनी बार पूछने का है तुम लोग? मैंने तो एक बार भी नहीं पूछा। मैडम पीएससी की शीट सॉल्व नहीं की आप लोगों ने? हाँ, तब की थी। तो हो गया ना एक बार, और कितनी बार तुम? अच्छा, इन सॉरी। इट्स ओके मैडम, कितनी बार सॉरी? इन हाउ मेनी वेज कैन 4 couples be seated round a circular table? मैम 4 couples में कितने लोग होते हैं? 8। क्या बात, बढ़िया है, यस सर। बढ़िया बढ़िया। So that the same gender does not get to sit together, मतलब मेल्स को एक साथ नहीं बिठाने का, फीमेल्स को एक साथ नहीं बिठाने का। And exactly one of the 4 couples sit adjacent to each other. हम्म। 4 में से एक ही कपल है जो एक दूसरे के एडजेसेंट बैठेगा। हम्म। पहले किसको बिठाऊं? 4-3-1। 4C1। अरे पूछ, ए तो भाई couple को पहले बिठा मेल्स को बिठाओ या फीमेल्स को बिठाऊं? मेल को सर हैं? अरे मेल हाँ वरुण क्या बोल रहे हो? आप पूछ रहे हो ना पहले किसको बैठाएंगे? हाँ मेल्स को बैठाएंगे ना सर। मेल्स को बिठाएंगे, सही बोल रहे हैं क्या वंशिका जी? सर, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों से आंसर तो आ ही जाएगा। कर लो, आप मेल्स बैठा लो। अरे नहीं ऐसे नहीं, अरे वरुण किसी को भी बिठा लेने का है भाई, क्या फर्क पड़ता है? मेल्स और फीमेल्स ऑल्टरनेट ही तो बैठेंगे। हाँ बैठा लो सर जो आपकी बोली। अरे तो यार ऐसे वो बायस बिहेवियर हो जाता है ना, मेल्स को बिठाने, फीमेल्स को बिठा लेना। फीमेल्स ऐसा ही है सर ये। हमें हरकतें तो सुधार दो। मेरे को समझ में नहीं आता है, ये दीक्षा पढ़ाई करती है चैट करती रहती है? सर, ये चैट बॉक्स एक्टिव रखने का काम करती है। हाँ एकदम। सर मेरे को क्वेश्चन आता है। और बताओ, आप फीमेल्स को पहले बैठने की बात कर रहे हो। मैं तो मेल्स को ही बिठाती हूँ। नहीं दीक्षा तो मेल्स को सपोर्ट करती है, इसको हाँ पसंद ही नहीं है फीमेल्स तो। सर मेरे को फीमेल्स पसंद नहीं, मैडम उनका बिहेवियर आपको समझ नहीं आता ना, अजीब सा होता है, बिल्कुल भी नहीं। लड़ाई सब करती मतलब ही रहती है। होती है एक नंबर की। यार एकदम दीक्षा, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है दीक्षा। सर आई एम विद दीक्षा, आई एम अगेंस्ट फीमेल्स। तू पता है। सर, आप क्वेश्चन बताओ यार, रहने दो आप। है तो कुछ बोझ नहीं रहा मैडम, ये लोग बोल रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स गेट इट। 4 मेल्स से कितने तरीके से बिठा सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल।
मैडम सर्किल है। अच्छा सॉरी, 3 3 फैक्टोरियल। factorial. 3 फैक्टोरियल बोले तो 6 हम्म तरीका होगा। अब फीमेल्स को बिठाना है। फीमेल्स के पास कितनी जगह है? 4। 4। कोई एक कपल ऐसा होगा जिसका मेल फीमेल साथ बैठेगा। हम्म हम्म. कौन सा वाला होगा? कोई 4C1। 4C1. 4C1। हाँ 4C1 से मैंने इस वाले कपल को सिलेक्ट किया और इसकी वाइफ को यहाँ पे बिठा दिया। ये फीमेल आ चलेगा। हाँ हाँ. जी। अब मैं लेबल कर रहा हूं M1 M2 M3 और इनकी 3 वाइफ हैं W1 W2 W3। हाँ है ना? हाँ। और कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के एडजेसेंट नहीं बैठेगी। हम्म W1 की बात करते हैं। W1 यहाँ पे आ सकती है क्या? नहीं. नो सर। यहाँ पे आ सकती है क्या? नहीं. नहीं। नो तो सर। W1 के पास कितना ऑप्शन बचा? 1। एक। एक तरीका। तो W1 को यहाँ पे ही बिठा दो। W1 को यहाँ हम्म. बिठा दिया तो W2 के पास कितना ऑप्शन बचा? 1. 1। और W3 के पास? 1. 1। तो ये जो रिमेनिंग 3 वाइफ्स है ना, इनको बिठाने का एक ही तरीका है लॉजिकल। एक ही तरीका है. हम्म. यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। इसके आगे और कुछ किसी को करना है मैं बताऊं? तो वही क्या कंसिडरिंग कि आपने मेल से स्टार्टिंग किया था, तो फीमेल से अगर स्टार्टिंग करेंगे तो इंटू 2 कर नहीं। देंगे। हाँ मतलब कैन से दैट अप टू लिमिट। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मेल फीमेल को स्वाइप कर सकते हैं। अभी ये जो मेल हाँ है, ये जो फीमेल है ना, ये इसके हम्म. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। हाँ ये फीमेल तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो आ सकती है। हाँ. हाँ लेकिन जैसे ये ठीक। फीमेल स्वाइप हुई ना, सारी फीमेल्स को स्वाइप करना पड़ेगा, नहीं तो ये हाँ. दोनों फीमेल साथ में आ जाएगी। अंडरस्टूड सर, ठीक है ठीक है। So it will be हम्म. multiplied by 2 because you can तो swipe males and females. So male can be on the clockwise or anti-clockwise direction of female. The one particular couple that we are talking about, uska male female can be swiped, right? And accordingly, all the other persons in the group will be swiped. Clear? Hai? So the correct answer should be 3 factorial. That is 6 into 4C1 is 4 into 1 into 2. 48. 48 should be the correct answer. ओके। Clear? Hai? यस सर। Shall we go ahead? यस। Yes, sir. Shall I remove the solution? यस सर। Yes, sir. Just allow me 1 minute. एक बार चार्ज कनेक्ट करना। नेक्स्ट प्लीज। 17. 17 बताने का है किसी को? नो सर। क्वेश्चन तो देख लो मैडम पहले। नो सर सर. बोला था मैंने भी। एनीवन? No, नो sir. सर। नो सर। पक्का? चलो नेक्स्ट प्लीज। 20. 21. 28 21 20 पहले 20. डी। बताने का है किसी को? नो सर। नो सर। हाँ सर बता दो. यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन P rupees for 2 years and 3 years respectively is more than the SI for the same period. मतलब ये आपको क्या दे रखा है? Difference of 2 and 3 years. डिफरेंस ऑफ 2 and 3 years। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर. डिफरेंस ऑफ 2 and 3 years का जब रेशियो दे रखा 7% है आएगा. करने से रेट आ जाता है, ये मैंने बताया था। हाँ. हाँ या ना? हम्म 2150 अपॉन 700 माइनस P। 2100 गया, इट इज 50 अपॉन 700 15,700. हम्म. बाय 14। ये आपका रेट आ गया और ये रेट एक्चुअली R अपॉन 100 आया। योर रेट कैन नॉट बी 1/14, राइट? सो इट इज इन परसेंट टर्म्स, राइट? कोई दिक्कत? No sir. No, sir. डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years इज P R अपॉन 100 का स्क्वायर और वो आपको दे रखा है 700 और ये है 1/196। तो P आ जाएगा कुछ 196 इंटू 700 करेगा कोई?
ये 137200 137200 137200. That should be the correct. Get it? Yes. Sure. sir. Anyone having a doubt? No, No, sir. sir. No, sir. Shall I remove the solution? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Mr. Agam? सॉरी सर, जागरण चल रहा है मेरे पास में, मेरे पे ऑप्शन नहीं है। अरे सर देखो मेरा छोड़ो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ नहीं हो रहा, वो छोड़ो, तुम पढ़ कैसे रहो मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। सर डेडिकेशन सर, ओनली सर 1 साल अबे पढ़ा है। डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं होती, कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए होता है। डेडिकेशन। दे रहा हूँ सर। अगला बोलो। 21। कमीशन के लिए आया है सर ये। अरे काय बात का कमीशन खाना है मेरे को, अगले साल खा लूंगा कमीशन, तो कोई दिक्कत है क्या अगले साल? ठीक है यार, इसको तो बोल भी नहीं सकते। नेक्स्ट प्लीज, ये बताने का 21। एनीवन? नो No, सर। sir. एनीवन? Sir. किसी को Yes, पूछना है sir. कुछ? Yes, Sir. sir. बता दो। क्या मैडम यार, क्या कर रहे हो यार? सेम क्वेश्चन शीट में कराया हुआ है। सर पता है मैंने कोशिश करी, नहीं हुआ मेरे से। तो मेरे बताने से कौन सा हो ही जाएगा? सर इतना बड़ा आंसर नहीं आ रहा था, मेरा बड़ा आ फिर रहा था इतना पर बड़ा इतना छोड़ने का, आप ये चैट बॉक्स छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान लगाओगे तो रहेगा ना। सर अभी थोड़ी ट्राई किया, क्या उसके बाद किया, तो मौके बाद किया था। अच्छा, चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। अ ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली। ये चंडीगढ़ है, ये दिल्ली है। बीच में 9 इंटरमीडिएट स्टेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बराबर, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नाम बताओ स्टेशन के। S1 S2 S3 S4 S5। अबे सिटी का नाम पूछा है मैडम। 6 पर्सन एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग। यार एक बात बताइए, मैंने दीक्षा आपका डाउट है, आप बताइएगा प्लीज। मैंने पहले ही पूछा, अगर आपको एक टिकट जनरेट करना है तो आपको क्या क्या नीड है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है? इंसान की। अबे टिकट के लिए इंसान थोड़ी ना मैडम, टिकट बन जाता है उसके बाद इंसान चाहिए होता है। मशीन चाहिए उससे पहले टिकट अरे बनाने की। यार, सॉरी मैम, सर। सॉरी। एनीवन एल्स? सर People. सोर्स और लोकेशन एंड डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन। मैम एक सोर्स स्टेशन चाहिए, एक डेस्टिनेशन स्टेशन चाहिए, कहाँ से शुरू होना है कहाँ पे खत्म करना है, ये दो चीजें पता होनी चाहिए टिकट बनाने के लिए। टिकट बनाने के लिए, हाँ 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 सर। बन तो गई। आपके पास टोटल चंडीगढ़ के बाद कितने स्टेशन है? 9। 10। दिल्ली भी तो है मैडम। अच्छा हाँ, दिल्ली भी है, ठीक है सर 10। आपने कोई से भी 2 स्टेशन सेलेक्ट किया, आपकी टिकट बन जाएगी। हाँ सर। 45। कितना होता है? 45। 45। 45। 45 अलग अलग टिकट्स आपके पास अवेलेबल है, बराबर। राइट। 6 लोग आए, कितने अलग अलग टिकट्स ले 45। सकते 45 C6 ओके। हैं? अब हाँ सॉल्व आपको करने का, आंसर निकाल दीजिएगा, मैच कर जाए तो अच्छी बात ठीक है, है। नहीं तो इनका आंसर गलत है। क्लियर है? सर ठीक है 45 सर, C6 ठीक है से आ सर। जाएगा आंसर। आ जाएगा। हाँ सर। आगे ये लो, एक सेकंड रुको, ये आंसर। ठीक है, चले आगे। यस यस सर। सर। Shall I remove the solution? यस सर। Next please, 2, क्वेश्चन नंबर 2। question number 2। बताने का है किसी को? No, sir. नो सर। यस सर। Anyone? यस सर, एक बार बता दो। एक बार बता देते हैं सर आपको। Vinod, while multiplying 3 real numbers, Vinod took one of the numbers as 53 instead of 47। बाकी 2 numbers का तो अता पता ही नहीं है। 53 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको करना था 47 से। हाँ या ना? हाँ। Yes, हाँ sir. सर। इसकी वजह से द प्रोडक्ट वेंट अप बाय 330। हाँ। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. यहां बस यहाँ से दिक्कत है सर। तक कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं। नो सर। अब ज्योति को दिक्कत है। ज्योति बताइए, एक्स और वाई का क्या क्या वैल्यू लेना चाहिए? 156। 156। मैंने क्या बोला, जब भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का वैल्यूज अच्छा को बराबर लेंगे। हाँ। बराबर लेंगे, जितना क्लोज ले सकते हो। क्लोजेस्ट क्या पॉसिबल है? क्लोजेस्ट। 7 8। 7 8। हाँ बराबर, सर। ठीक है। हाँ। अब 7 8 से आप आंसर निकालते ना तो सही आना चाहिए था। एक दिक्कत हो गई। 3
रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हैं। हम्म। ऐसा नहीं बोला इंटीग्रल वैल्यू ही चाहिए, डेसिमल भी चलेगा। हाँ। अब क्या ले सकते हो? इक्वल। दोनों वैल्यूज को इक्वल, √56 और √56, हाँ या ना? हाँ। यस सर। यस सर। अब आपसे पूछा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना होगा? 56 + वाई स्क्वायर 56 कितना होगा? 112। 56, आंसर कितना डन। आएगा? 112। दैट्स इट, खत्म। सर ये हो अपन गया। ने 8 और 7 क्यों नहीं लिया? सॉरी, 8 और 7 क्यों नहीं लिया? 8 और 7 से लेते हैं तो 8 का स्क्वायर आता है 64, 7 का स्क्वायर आता है 49, जो कि आंसर देगा 113। हाँ सर। आपसे मिनिमम पूछा है, 112 ला सकते हो ना? तो मिनिमम क्या होगा? 112। क्लियर है? अगर ऐसा बोला होता है while multiplying 3 integers, तो आप जो बोल रहे हो आंसर सही हो जाता। हाँ सर। लेकिन रियल नंबर में तो डेसिमल भी आ सकता है ना, रूट भी आ सकता है। हम्म। बराबर मिस्टर वेदांत? हाँ सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस यस सर। सर, आ गया। ग्रेट। शेल आई रिमूव दिस? यस सर सर। यस सर। सही, थर्ड नंबर का क्या हुआ? थर्ड नंबर से कोई मतलब ही नहीं। व्हाट दे आस्किंग इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर, बाकी दोनों अच्छा ठीक। नंबर्स का स्क्वायर करके सम निकाल। ओके। हटा दूं? यस यस सर। सर। नेक्स्ट प्लीज। सर 3। बताने का है किसी को? यस यस सर। सर। हाँ सर, बताना। ठीक है। देखो, इसमें भी क्या है, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप पूरी सीरीज बैठ के निकाल लो और उसको ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेटर आपके पास है, सब वक्त की कमी है नहीं। वो तो कर ही सकते हैं ना। तो फिर वो 20 टर्म्स तक कौन इतना ऐड करता रहेगा? हाँ सर, कौन तो करेगा और उतना? बचा क्या है जिंदगी में? भाई बाकी के कौन से क्वेश्चन आते हैं अपने को? तो सर इसका जो आपने बताया हुआ है डिग्री 2 पे कॉमन आ जाता है, एपी बन जाती है, उससे हो जाएगा ना ये वाला तो? इसका अरे जनरल वो टर्म तो निकल जाएगा, जाएगा। दिमाग क्यों लगाया? हाँ जनरल टर्म निकल रहा है। अरे भाई मेरे को भी आता है, सॉरी। मैं तो बस सजेशन दे रहा था उन लोगों के लिए जो जिनको बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उसको इसको पूरे को पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक क्वेश्चन करो, लेकिन 3 नंबर तो लेके जाओ। दिस कैन बी वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। 1, 6, 21, 52, 105, 186। कोई डायरेक्टली जनरल टर्म निकाल सकता है इसका बिना कुछ जुगाड़ किए? मतलब। मतलब जनरल टर्म निकाल सकता है कोई? हाँ सर, निकल डिग्री गए। 2 लगाए बिना, डिग्री 1 लगाए बिना, डायरेक्टली देखते ही? सर डिग्री तो लगेगी। नहीं सर, बन गया था ऐसे ही। बताइए मैम। सर n³ - n² + n बना था। n³ - n² + n बराबर। बाकियों को समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। नो अबे सर। ऐसे कैसे समझ में आ जाता है? नहीं सर, नहीं कैसे बैठा। देख के स्ट्राइक सर करेगा? n³ - n² + n लगाने का है। वो बताया उसके बाद स्ट्राइक किया है ना। हाँ सर, ये मतलब कैसे? और सर मैच हो रहा है। भाई तो एक बच्ची ने बताया, सब हर कोई उसको थोड़ी लेके जाएगा एग्जाम में। खुद का दिमाग काम आएगा ना। सर फिर वो वाला कर लेंगे ना जो आपने। हाँ, चलो बढ़िया है, कैटेगरी तो पता चली सर आपको आपकी। वो सब सभी उसमें है सर। बस वही है, कोई एक्सेप्ट कर लेता है, कोई नहीं करता। चलो लेट्स फिगर इट आउट। कईयों को पता है डिग्री 2 क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। लेट्स टेक आउट द डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, कोई बताएगा प्लीज? 5, देन 15, देन 15, 31, 1, देन अरे यार, 53, 53, देन 81, 81, फर्दर यहाँ पे 10, देन 20, 16, 16 सॉरी। किसने बोला था? मैं हूँ सर। देन 22, देन 28, 28। छोड़ने का यहाँ पे 6 का 6 6, 6 6 6 आ जाएगा। 6, कौन सी डिग्री पे जाएगा? 3, 3, 3। करण तो बोल रही थी डिग्री 2 पे आ जाएगा। पूछ लेते सर उससे भी। कहाँ गई कनन?
सर उसका वाईफाई खराब होने वाला है अभी 2 मिनट में मैडम बस। अरे सर, चैट चैट पे तो बात कर रही, बोल क्यों नहीं रही? नहीं, वो सब छोड़ो, दीक्षा को कैसे पता चला हाँ वाईफाई खराब होने वाला सर देखना अभी वो आके यही बोलेगी उसका वाईफाई खराब हो गया। है? जाने दे देते। अपने को समझ में आ गया। देखो, ये लेवल 1 लेवल 2 3 बार डिफरेंस निकालना मतलब ये डिग्री 3 इक्वेशन है। डिग्री 3 इक्वेशन है तो अपन इसको लिखेंगे ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। हाँ या ना? Yes, sir. यस नेक्स्ट राउंड के लिए आने दो इसको, तब बात करते हैं। हाँ, अब पहला काम, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का होगा। हम्म ये 6 का होगा तो ये 4 4 4 का होगा तो ये, सर 1 और ये 1 का होगा तो माइनस ये। ओ सॉरी प्लस 0 समझ में आया? यस सर कुछ नहीं, इनका डिफरेंस इधर लिख रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस यस इधर। सर ठीक है, ये आपका T1 था, ये T2, तो ये T0. T0। n को 0 पुट किया, आई लेफ्ट T0, टी उसका वैल्यू 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी। डी का वैल्यू कितना आ गया? 0 0. एक वैल्यू तो मिल गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। एक और जुगाड़ बता दूं क्या? हाँ सर. ए का बताओ वैल्यू तो डायरेक्टली बताओ निकालने का एक तरीका होता है। ये जो फाइनल डिफरेंस सेम आ जाता है ना, हम्म दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेवल। लेवल कितने हैं इसमें? 3 का फैक्टोरियल। तो 1. 1 आ गया। बाकी आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। डिग्री 2 तक मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि 2 ही वेरिएबल बच रहे थे, एबी अब 3 वेरिएबल बच गए एबीसी, तो बहुत लेंदी जाएगा, तो ए को यहां से निकाल दो। समझ में आ गया? जो फाइनल डिफरेंस आ रहा है उसको नंबर ऑफ लेवल्स के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, यू विल गेट ए। ओके सर अब ए और सर डिग्री सॉरी, सर डिग्री 2 डिग्री 3 किसी में भी हर में एप्लीकेबल होगा ना। मैडम करण का पता नहीं, आपका वाईफाई जरूर खराब हो गया, मेरे को समझ में आ नहीं रहा है आप क्या बोल। सर उसका भी क्या सर वाईफाई? मेरा सर अब छोड़ने का ही, जब तक वापस से पूछेंगे तब तक अपन आगे निकल जाएंगे। कुछ पूछना है? सर मैं कह रही थी आपने जो बताया ना हाँ जो लास्ट नंबर आता है डिवाइड बाय जितने लेवल पे है उसका फैक्टोरियल, तो ये हाँ, डिग्री 2 डिग्री 3 सब पे एप्लीकेबल है ना? मैं ये सब में पूछ रही थी। एप्लीकेबल है मैम, सब में एप्लीकेबल। ठीक है दिस इज ठीक ओनली है फॉर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री। ए का वैल्यू निकाल सकते हो इससे, मतलब हमें। ठीक है सर ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं बी पे। T1 की बात करते हैं। T1 है 1 इक्वल्स टू 1 पुट किया, 1 इंटू 1 क्यूब कितना होगा? 1. ए 1। मैडम ए तो निकाल लिया ना 1। सॉरी सॉरी हाँ हाँ 1 बी इंटू B. 1 स्क्वायर, बी B. प्लस ई सी प्लस 0। 0. बी प्लस सी कितना हो गया? 1 मैडम 1 0। अरे अच्छा हो सॉरी 1 7 यार ये मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था, ये दीक्षा ने अपनी डीपी लगा रखी है। सर ये ऑफिस से लगी हुई है मेरी। नहीं, वो बात सही है, मैं तो बोल रहा हूँ वंशिका, आप ऐसे कान पकड़ के सॉरी की पोज में क्यों नहीं लगा देते हो एक डीपी ऐसी? बार यार बार सर बोलने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कंसिडर करूंगी सर। मैं मैंडेट कर दूंगा अगली बार, कंसिडर। अरे यार मेरी क्लास है मैडम। एन को ओके 2 सर पुट कर रहा हूँ, T2 इक्वल टू 6, हम्म ये हो गया हाँ A. A, ये हो गया 4B, 0. अच्छा सॉरी, ये हो 4B. गया हाँ 2C, बराबर। यस सर यस हाँ. सर। आई हैव 2 कॉमन लेके काट रहा हूँ, C प्लस 2B इक्वल टू -1। -1 यस सर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। आई हैव B इक्वल टू -1, सर। सही है। हाँ एंड C सर इक्वल टू हाँ. +1 हो जाएगा क्योंकि B +1 प्लस C 0 था। हाँ. सब कुछ पता चल गया, तो मुझे जनरल टर्म पता चल गया। जनरल टर्म मेरा आ गया n³ -n² प्लस n। सर मतलब बी यही आ रहा था, इक्वल टू +1 होगा क्या? B इक्वल टू +1, हम यही बोल रहे हैं आप। हाँ जी नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। पलक आपका यही आया था, n³ -n² +1 प्लस n। यस सर। चलो यहां तक अपना जनरल टर्म आ गया। जनरल टर्म के बाद क्या, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स,
n क्यूब 20 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना, जल्दी से बोलते रहो। Yes, sir. 21 इंटू 41/6, 41/6 हाँ 20 इंटू 21/2। 21/2 सॉल्व कर लो क्या, करके बताऊं? हो जाएगा सर। Sir, हो जाएगा. चलो ठीक है, सो गेटिंग इट डन, शैल आई रिमूव द सोल्यूशन? यस सर। एक सेकेंड सर, ओके मैम, हो गया सर। पक्का हटा दूं? हाँ हाँ। नेक्स्ट प्लीज, 7 बताने का है किसी को? यस सर। No, sir. नो सर। नो बताने सर। वाला था। लोग बीडीएन वाले नहीं पूछेंगे, उनको मैंने क्लास में क्वेश्चन करके दिखा दिया है, बट फॉर एलके स्टूडेंट्स वी कैन जस्ट हैव अ सॉल्यूशन। देखिए आपको क्या करने का है, जस्ट टेक द एलसीएम, ए बी ए प्लस बी हाँ 1/6, equals क्रॉस to मल्टीप्लाई, 6a प्लस 6b इक्वल टू ए बी, 6a माइनस ए बी प्लस 6b इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो सर। एनीवन? नो सर। नो सर। अब मैं मेरी इच्छा से 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, हम्म समझ में आ गया क्यों किया? सर उसको वो Yes, sir. बनाएंगे ए बी अरे वो कोई कुछ नहीं बनाएंगे, मेरी इच्छा थी, बोला ना मेरी इच्छा से कर रहा हूँ, ये तो आपने क्यों करा, आपकी इच्छा से मेरी करा। इच्छा भाई। सर ठीक अपने है सर। 6 का ही स्क्वायर क्यों किया? बोला ना मेरी इच्छा, समझ में नहीं आता क्या तुम लोग? आ गया सर। टेक कॉमन, इनमें से अगर कॉमन लूंगा ए बचेगा 6 हाँ माइनस बी, 6 हाँ है ना? माइनस बी। अब ये ब्रैकेट 6 माइनस बी का बन जाए इसलिए लिया था, क्लियर है? अच्छा ओके। माइनस अच्छा 6 ओके। कॉमन लूंगा, हाँ यहाँ से 6 और यहाँ से माइनस भी 6 बच जाएगा। माइनस बी। हाँ ए ए माइनस 6, 6 6 माइनस माइनस बी, माइनस 36। नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ दूसरे वाले ब्रैकेट में से, तो 6 माइनस बी की जगह बी माइनस 6 कर दूं इसको, हाँ और वो नेगेटिव इधर लाके कैंसिल कर दूं, प्लस का 36 36 हाँ। बना दूं। हाउ कैन यू गेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 36? इट इज 1 into 36, the second way can be, 2 into 18 third is 4 9 into 12 3 3 12 12 कौन बोलेगा? 4 4 9 9 6 6। 6 6 there are total 5 base, हाँ there are total 5 solutions। अच्छा ओके। समझ में आया? क्या करूंगा, Yes, sir. a माइनस 6 को 1 और b माइनस 6 को 36 ले लूंगा, a और b का कुछ ना कुछ इंटीग्रल वैल्यू तो आएगा ही आएगा ना। हम्म हाँ वरुण हाँ कुछ बोल रहे थे आप, आई गेस बोल रहे थे क्या? नहीं बोल रहा था, जाने देंगे। Is सर this मेरे clear? को डाउट है हाँ कि प्लीज। जब आपने जब वो नेगेटिव ब्रैकेट चेंज किया ना, हाँ नेगेटिव हटाने के लिए, वो अपन ने एक ही साइड पे किया, मतलब बी माइनस 6 के लिए किया। हाँ क्या कर सकते हैं, मतलब ए माइनस 6 के लिए नहीं किया मैडम, दो ओवरऑल? नेगेटिव कॉमन लोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा ओके। हटा दूं? यस सर। हाँ सर। Anyone else having a doubt in this can ask again, else we'll go ahead with the next one. सर एक डाउट है। Yes sir. सर आपने जैसे इधर 136 वैल्यू लिया तो 36 1 भी तो ले सकते हैं ना, एंड टोटल बराबर, ऐसे 9 वैल्यूज नहीं हो सकती? एग्जैक्टली मैं यही चाह रहा था कि कोई ये पूछ ले, लेकिन ये क्या है, नालायक बच्चे हैं, पूछते नहीं, तुम ही अच्छे बच्चे हो यार एक। तो कंडीशन भी तो दे रखी है, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी। ये वाली कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी सर, ठीक है सर। है ना? इसलिए सपोज ये कंडीशन नहीं दे रखी होती, आंसर वुड हैव बीन 10 इन दैट। 9 होता ना सर, 6 6 9 तो होता सर, अरे सॉरी सर, 9 होता सर, 9 सॉरी। चले आगे, यस यस सर। सर। हटा दूं? यस सर। यस सर। नेक्स्ट प्लीज, 8 बताने का है किसी को? नो सर। नो सर हाँ सर बता दो। यार ये दीक्षा दीक्षा पढ़ती कुछ बोल रही है। ए भाई, ये मेरे को हटा देगी, अभी बोले अलग ग्रुप बनाऊंगी उसमें भेजूंगी सर को ग्रुप करके। नहीं बढ़िया है वैसे, ऐसे एक्टिव रहता है चैट बॉक्स। बताना है किसी को ये वाला? नो नो सर। सर। हाँ हाँ No, सर एक बार sir. बता दो। सॉरी, किसी ने हाँ बोला है सर क्या बता यार? दो। हाँ बताओ, मैंने बोला देख है, लेते हैं बता सर, दो। देख लेते हैं। डाउट है। 5 apples
7 मैंगोज 2 ऑरेंजेस खरीद के लाया। सॉरी ओ क्यों लिख दिया, जेड लिखूंगा ना। ठीक है, खरीद लाया। अंकित बॉट 6 एप्पल्स 14 मैंगोज 7 ऑरेंजेस, नहीं 4 ऑरेंजेस फॉर एन अमाउंट विच इज 25% मोर देन द अमाउंट देन दीपक। ठीक है, ये 100 रुपए में खरीद के लाए। ये कितने रुपए में खरीद के लाए? 125 मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 2, you'll have 10x 14y plus 14y plus 4z 200 subtract the 2, you'll have 4x equal to 4x 75। बाकी सब 75। कैंसिल आउट हो गया। हम्म x equal to 18.75, हाँ या ना? यस सर। yes sir Find the percentage Yes, sir. amount दीपक paid by apples। दीपक ने एप्पल पे कितना खर्चा किया? x 5 था into 18.75, वो 5 एप्पल खरीद के लाया। तो कितने का होगा? 93.75 रुपीज का खरीद के लाया 100 में से। 93.75% हो गया। ठीक है सर। यस Shall I remove this? यस yes सर। sir यस सर। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ वन थिंग कि जनरली इनको स्वैप कर देते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, मैंगोज पहले फिर ऑरेंजेस, यहाँ पे मैंगोज बाद में और ऑरेंजेस पहले बाद में करते हैं, जिससे क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। क्लियर है? ठीक है सर। नेक्स्ट प्लीज। 11। बताने का है किसी को? यस सर। नो सर। देख लेते हैं। देयर वर 2 पेन्स, पेंसिल एंड इरेजर 20 रुपए में। Each of them is a positive integer. Then for how many combinations of prices would this have been possible? कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन लग रहा है? number of PNC linear equations linear equation क्या नालायक बच्चे यार। पीएनसी का नहीं है क्या? पार्टीशन PNC मेथड का है। भाई, पार्टीशन मेथड नहीं दिख रहा है सर लीनियर से भी तो हो जाएगा ना मैडम? हाँ 3 वेरिएबल 1 इक्वेशन कब सिखाया मैंने आपको? हाँ सर सिखाया नहीं तो फिर जो सिखा रहा हूं वो तो आ जाए पहले। yes sir हाँ, नहीं दिखाई पार्टीशन मेथड का क्वेश्चन है। पीएनसी ढंग से देखो, आंखें खोलो। अब दिखा? यस सर। तो पहले हाँ जी। आंखें बंद क्यों थी मैडम आपकी? क्या? फिर आंखें खोलने के बाद बोल दिखा ना आपको? हाँ सर। अभी हो जाएगा, करके बताना है। सर वो पीएनसी से बता दो ना। बता दीजिए ना सर वो पीएनसी से एक बार हद बच्चे हैं, हद। कई बातें तो सही बोलती है। हाँ सर ये सुन लीजिए मैम, एक्स को मिनिमम 1 वैल्यू दे सकता हूं क्योंकि हम्म पेन फ्री का तो आता नहीं है। एक्स को 0 दिया मतलब उसकी कॉस्ट 0, कॉस्ट 0 मतलब वो फ्री का। पेन फ्री का आता है क्या? नहीं। नहीं, वो तो आप उठा के ले जाते हो, बाकी फ्री का नहीं आता है, राइट? हाँ सर मैं कभी नहीं लेके गई हूँ, ठीक है। छोड़ने का है मैडम, अब क्या मतलब। y प्लस जेड 18 हो गया, हाँ या ना? एक्स को इधर 1 yes पुट किया तो हाँ 18 values are to be divided among y z. There is only one partition required for that. ठीक है, 19C1। 19C1। लेकिन 1961 लेकिन 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 y का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? नहीं नहीं। z का? नहीं। तो पहले एक एक इनको दे दो। अभी 16 ऑब्जेक्ट बचे। हाँ यस सर। 17C1 होगा, हाँ या ना? 17C1 हाँ 17C1 ओके। x को 2 रखा तो 4 इधर गया। y प्लस जेड कितना बचा? 16 16 में से 2 ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे पहले। 14 14 15C1 15C1 x को 3 रखा, y प्लस जेड कितना हो गया? 14 14 14 में से 2 ऑब्जेक्ट देने 12 पड़ेंगे। 13C1 13C1 पैटर्न दिख रहा है क्या यार? हाँ 2 का गैप है 2 का गैप है। कहना है हाँ स्टार्टिंग के ये जाते जाते till 5 1 3 1 ऐसे बैठ जाएगा। हाँ और ये Yes. स्टार्टिंग के 9 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है ये। और ऑड नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर। N n square square 81 हाँ क्लियर है क्या? yes sir यस सर। पक्का? यस सर। Shall I remove this? yes sir Next please.
The 15. 15. बताने का है किसी को? Yes, sir. और किसी को? नो सर। यार सर, बता दो सर। सर इसका जुगाड़ है तो बता दो आप। सर गार्ड। याद है ये मैं आपसे पूछ के गई थी। यस मैम। सही करके आओ क्या? हाँ। बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद मैडम, मेरी मेहनत काम आ गई। सर इसमें भी वो करेंगे क्या, अपने मर्जी से ऐड ले दोनों तरफ? मतलब मेरी इच्छा है। हाँ देखो मतलब। एक्स दिख रहा है, ये हाँ 2ab वाला फॉर्म है जिसमें से 2 हटा हाँ। दो, एक्स हटा दो, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 आ मैंने गया। यहाँ पे हाँ। 36 ऐड कर दिया। हम्म। तो यहाँ दूसरी पे भी, तरफ भी करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे 36 सब्ट्रैक्ट ही कर दूं, क्या ऐड करने का है? हाँ जी सर, चलेगा। y दिख रहा है -2 टू। इंटू 2y दिख रहा है, तो प्लस का 4 4। कर दिया और माइनस का 4। माइनस का 4। चलेगा क्या यहाँ तक? बिल्कुल चलेगा सर। दिस इज x प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसका हाँ होल या ना? स्क्वायर। हाँ, x माइनस y 2 का। -2 का होल स्क्वायर, सॉरी। हाँ या ना? हाँ, और ये 40 बराबर में से 0। 40 गया 0, हाँ या ना? हम्म। दो स्क्वेयर ऐड करके 0 कब दे सकते हैं? Both equal to 0. ये बोथ दोनों इक्वल टू ठीक है। 0। x इक्वल टू -6, y इक्वल टू, वो है। अच्छा 2 2। हम्म। x y इक्वल टू। -12. -12। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Shall I remove this यस solution? Yes, सर। sir. Thank you so much. Next please. 16. 16। बताने का है किसी को? No, यस sir. सर। बताना है? हाँ जी हाँ। सर। चलो देख लेते हैं। An insurance company earns 250 per person as annual premium for Mediclaim insurance that covers hospitalization bill up to 18,900 at the rate of 80% of actual bills. It is estimated that only 1 out of every 100. It is estimated that only 1 out of every 100 insured persons would incur the hospitalization bill of rupees 50,000 days, no other bill of any amount presented by the insurer. This scheme costs the insurance company 10% of the revenue as administrative cost. How much would the company earn as profit per person? कोई बता सकता है किसी का solution है, आप please? Yes, sir. मैम प्लीज बताएंगे। सर आपका टोटल अमाउंट आपका 250 पर पर्सन और 100 इंश्योर्ड पर्सन है, तो आपका टोटल अमाउंट 25,000 हो जाएगा, जो कि आपका बराबर। रेवेन्यू है। देन उसके बाद में उन्होंने लिख रखा है कि आपका 15,000 का होगा, विच इज आपका जो बिल पेमेंट है, तो इसका 80% कंपनी इंश्योर करेगी, तो दैट वुड रिजल्ट इन 12,000। 12,000। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद 25,000 का आपका 10% का तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में निकल गया, 2500 उसमें चले गया, तो 22,500 का आपका अमाउंट बचा हुआ है। हाँ। और 22,500 में से 12,000 रुपीज है, क्योंकि आपका खर्चा लग गया है पर 100 के अकॉर्डिंगली, तो वो डिडक्ट करके फिर उन्होंने डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो आपका पर पर्सन का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आगे बात होगी? नहीं सर सर। किया तो ऐसे था, आंसर डिफरेंट आया था काफी, मतलब थोड़ा सा लगाया था। Okay, fine, fine, fine. वंशिका, your answer is perfectly fine. मेरा एक छोटा सा क्वेरी है। यस इस लाइन का आपको मतलब कुछ रेलेवेंस लगा? दिस स्कीम कॉस्ट द इंश्योरेंस कंपनी 10% ऑफ द रेवेन्यू एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सर 10% का कॉस्ट है। हाँ मतलब इसका रेलेवेंस, अच्छा ये आपने कहाँ पे यूज किया? 25,000 में से 2,500 रिड्यूस करने में, राइट? हाँ जी। ओके परफेक्ट, गॉट इट। चलो बाकियों को समझ में आया? मैं समझाऊं? समझा दो सर। एक बार बता दीजिए सर। मैं क्या जादू करूंगा कि इतना बढ़िया समझाया यार, तुम लोग सर वो बेवकूफ हो। 2x पे चला गया ना। यार सर बताओ सर आप आप। तो आप ही रहोगे ना, दुनिया ही तो ऐसी है, कोई कोई नहीं अप्रिशिएट कर। नहीं करेगा आपको। देखो मैं इतना अप्रिशिएट कर रहा हूँ, फिर भी ये लोग ऐसे ही नालायक है ना ये बच्चे। नहीं सर, नहीं आप सर, संजय कंपैरिजन ब्रो अपने आप 2x से पे कर चला रहे गया हो तो ना। कहाँ से आएगा? सॉरी सर आप अपने आप से कंपैरिजन कर रहे हो, वो तो नहीं चलेगा। मैम, आपको पता नहीं है ना अभी यहाँ पे सिनेरियोस क्या करना पड़ता है। ओह, ऐसे हम्म। है क्या सर? कॉस्ट की बात करते हैं। इनकम कितना हुआ?
कंपनी ने 250 रुपए के हिसाब से 100 बंदों का इंश्योरेंस कर दिया, 25,000 तो 25,000। कितने रुपए मिल गए? 25,000। 25,000 इस 25,000 में से 10% तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट चला गया, उनके पास नेट इनकम कितना अच्छा, बचा? तो 22,500। 22,500 22। अब जो इररेलेवेंट डेटा है वो बता देता हूं। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, वैसे रेलेवेंस होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि कंपनी मैक्सिमम 18,900 तक के बिल को ही इंश्योर करेगी, उससे ऊपर बिल दोगे तो नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे 15,000 का ये बिल पेमेंट है, तो कोई मतलब ही नहीं है, इस डेटा का रेलेवेंस यहाँ पे खत्म हो गया। बराबर। Yes, sir. आगे चलते हैं। एक बंदा आया 100 में से अपना बिल लेके, कितना? 15,000 का। 15,000 इसमें से प्रीमियम उसको कितना मिलेगा? 12,000. 80%। 80%, सॉरी, 80%. गोइंग 12,000। टू बी 12,000। बाकी 99 पीपल तो आए नहीं। कंपनी के पास 22,500 बचा था, उसमें से 12,000 उन्होंने उस एक बंदे को दे दिया। कंपनी के पास कितना बचा? 10500। 10,500 और पर पर्सन कंपनी ने कितने रुपए कमाए? 105। 105 सेम एक्सप्लेनेशन वंशिका का था। तुम लोग बेवकूफ हो, समझ में तो आता नहीं है तुम लोग। मैडम Thank खुश? you. भी समझ में नहीं आया। दफा हो जाओ यहाँ से। सर बता दो। हाँ बता दो, सब कुछ तो लिखा है। सर 1 out of every 100 लिखा है, तो हम एक ही इंसान का गिनेंगे? तो मैम 1 आउट ऑफ एवरी 100 का मतलब 2 होता है क्या? नहीं, मतलब हमने 100% अज्यूम कर लिया, क्योंकि नहीं, हाँ क्वेश्चन आप तो है मैम ही नहीं। 1000 लोग लेके करूँ ना, क्या दिक्कत है? 1000 में से 10 को पेमेंट दे देने का है, अच्छा। फिर लास्ट में जाके डिवाइड बाय 1000 कर देने का है, तो भी आंसर तो सेम ही आएगा। लुक, दिस 1 आउट ऑफ एवरी 100 इज जनरलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि मैं जब तक एक्चुअल नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं पता है या फिर एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन इंश्योर्ड ये नहीं पता है, आप कैसे करोगे? यू गेटिंग इट? या सर। If I'm saying 1 out of every 100, 1 out of every 20 students will get a 90+ percentage, what does it mean? कि अगर 100 बच्चे थे तो एक का आएगा। 1 out of every 20 बोला है मैंने, ओ सॉरी, तो मतलब अगर 20 बच्चे थे तो एक का आएगा। और 100 में से 5 का है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 100 बच्चों पे कैलकुलेट करो या 20 में से कैलकुलेट करो या 10 में से कैलकुलेट, आंसर सेम ही रहने वाला है, बिकॉज दैट्स जनरलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, राइट? राइट। Yes, sir. सर ये भी बता दो, सर वो 80% प्रीमियम का मतलब क्या है? मैडम आपने कभी इंश्योरेंस क्लेम किया है? नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा जल्दी? ये मेडिक्लेम की बात हो रही है, मेडिक्लेम पे नहीं जाते, कल आपकी गाड़ी ठोक देते हैं, फिर तो इंश्योरेंस लोगे, हाँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर जितने का भी खर्चा होता है उसका 80% कंपनी पे कर देती है। आप जो बिल देते हो ना इंश्योरेंस कंपनी को, कभी भी कंपनी पूरा पैसा आपको नहीं देती है। राइट। हाँ। या सर्टेन डिडक्शंस, आजकल जीरो डेब्ट होता है वो अलग केस है, ये क्वेश्चन पुराने जमाने का। अच्छा। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन डिडक्शंस बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, कि भाई जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कार इंश्योरेंस, तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं गाड़ी के जो इंश्योर्ड नहीं होते, डैमेज में वो भी डैमेज हो गए। हाँ। अब डैमेज हो गए तो अपना जो सर्विस सेंटर है वो तो उसको रिपेयर करेगा और वो उसका बिल भी बनाएगा, लेकिन कंपनी तो वो पैसा नहीं देगी आपको। हाँ। So basically what happens is कि whenever you are presenting a bill, there is a limit set by the company at the time of insurance only, कि हम इतना % ही प्रीमियम आपको वापस से देंगे, अच्छा, ठीक है। है ना? तो कंपनी का रूल था कि दे प्रोवाइड ओनली 80% ऑफ द एक्चुअल बिल, जितना भी बिल होगा उसका 80% पैसा दे देंगे। राइट। तो उन्होंने 12,000 दे दिया, यस मैम, और बचा तो था उनके पास 3,000 22,000। बचा। मैम अच्छा, 15,000 का इनकम नहीं हुआ था, ये तो कस्टमर बिल ने बना बिल दिया था, उनके हाँ। पास नेट इनकम 22,500 था। लो अच्छा। मैं पूरा रिपीट करता हूँ, आपके पास 250 रुपीज के हिसाब से 100 कस्टमर्स आए, यानी आपके पास 25,000 का इनकम हुआ। लेकिन आपकी एक कंपनी थी, उसकी रनिंग कॉस्ट थी, रनिंग कॉस्ट में 2,500 रुपए चला गया, 10%, सो यू वर लेफ्ट विद 22,500, राइट? नाउ आउट ऑफ एवरी 100 देयर वाज ओनली वन बिल, मतलब इन 100 में से एक बंदा आया बिल लेके 15,000 रुपए, आपने बोला मैं इसमें से 80% यानी 12,000 रुपए आपको कैश दे देती हूँ, आपने दे दिया। आउट ऑफ 22,500 you were having cash in hand, you gave him 12,000, you were left with 10,500,
and this is the total income that you had over a total of 100 members. हाँ ओके पर सर member समझ का गई 105. Clear है? यस सर Can थैंक you यू do it? यस सर Okay. Thank you for the explanation, Nancy. मेरा थोड़ा सा काम बच गया. हटा दो इसको. यस सर Yes, sir. Next, please. 18 बताने का है किसी को? No, sir. नो सर यस Anyone? सर Sorry, किसी ने No, yes sir. बोला क्या? हाँ सर बता दो आदम बता देते हैं सर. देखिए ऐसा दे रखा है. A biased dice is such that even numbers appears twice as frequently as odd numbers. Everything, the entire crux of the question is in this only. ऐसा बोल रखा है कि even numbers के आने की frequency double है as compared to odd numbers. Dice है 1 2 3 4 5 6. ये dice के आउटपुट होने चाहिए, बराबर. Hmm. लेकिन मैं मान रहा हूँ डाइस के आउटपुट ये है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 7, 9 आउटपुट देगा डाइस, Hmm. क्योंकि 2 के आने की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 से दो डबल बार होनी चाहिए, 4 वाली 3 से डबल होनी चाहिए, मतलब सारे इवन नंबर्स की डबल होनी चाहिए एज कम्पेयर टू ऑड नंबर. क्लियर है? यस सर Yes, sir. सम ऑफ द Yes, sir. नंबर्स दैट ऑब्टेन्ड इज 11. आपको सम ऑफ द नंबर्स 11 लाना है. Hmm. एक ही डाइस को दो बार थ्रो किया. फेवरेबल के टोटल केसेस 9 into 9. हाँ. हाँ फेवरेबल केस 11 कैसे ला सकते हो? दो Five, नंबर्स को six. ऐड करके, 5, 5 6. 6 या फिर 5, 6. बस sir. तो लेगी तो Six. क्या 5 6. 6, 5. या 5, 6. देखो इस 5 के साथ या तो ये वाला 6 आएगा हाँ. या फिर इस 5 के साथ ये वाला 6 आएगा. दो केस. Hmm. Hmm. फिर या तो इस वाले 6 के साथ ये वाला 5 आएगा हाँ. या फिर 3, इस वाले 6 के साथ 4. ये वाला 5 आएगा. अब आप बोलोगे सर दोनों 6 आइडेंटिकली तो हैं. अलग अलग लेते हैं ना सर 5, 6, 6, 5. तो मैं 6 1 और 6 2 ले लेता हूँ. ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे भी तो अलग अलग काउंट किया है. Hmm. कोई दिक्कत है तो बोल देने का है, नहीं तो विल गो अहेड. नो सर श्योर पक्का चले आगे. Yes, हाँ sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज. चल आई रिमूव द सोल्यूशन. 22. Yes, हाँ sir. Yes. नेक्स्ट 22 बताने का है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. लॉग चलो देख लेते हैं भाई. 27 पावर log x base 4 base 3 इक्वल टू log x base 4 का स्क्वायर प्लस 5 log x base 4 प्लस 2. यार पता नहीं, मैं क्वेश्चन लिख रहा था, मेरे को बार बार एक ही वैल्यू दिख रही है log x base 4. इसको हटा के मैं y ले लूं क्या? आपको दिक्कत ना हाँ. हो? Yes, sir. Yes, sir. 27 पावर log y base Y 3 base 3. इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 2. कोई दिक्कत है तो बोल दो. No, sir. No, मेरे को sir. जैसे ही log पावर में दिखता है ना, मुझे दिमाग में एक ही प्रॉपर्टी A आती है log log. B A log base. A. हाँ. इसलिए मुझे इसको और इसको सेम करना जरूरी है. हाँ. तो इस 27 को मैं लिखूंगा 3 3 क्यूब, 3 cube. बार हाँ. Y cube आ जाएगा. और इस 3 को यहां से हटा के मैं यहाँ पे लगा दूंगा. हम्म. कोई दिक्कत है तो बोल दो. No, sir. नो No, सर sir. इसको सॉल्व करके मैं लिख दूंगा y क्यूब. Y cube. कोई दिक्कत है तो बोल दो. No, नो sir. सर No, sir. कोई दिक्कत है तो बोल दो. नहीं No, sir. sir. x greater than 1 क्वेश्चन में दे रखा है how many different values of x satisfies the equation. यार हाँ. my opinion better not to go for this question. यहाँ तक आप लोग कर लोगे. The problem is that it's again going to be a cubic equation जिसका hit and trial से पहला solution आपको निकालना पड़ेगा, Hmm. which is going to be a difficult task, I guess. So my suggestion better not to go for a question like this. But still अगर किसी को भी cubic solve करनी है तो बता दीजिए. सर किसी ने कोई बता दो trial से? सर इसमें हिट एंड ट्रायल करी कौन सी वैल्यू बैठ रही है? सर इसमें फैक्टराइजेशन में जैसे 1 और 2 ही तो लेंगे अपन वैल्यू में यार चेक पता करने नहीं के लिए. क्या टेक्निकल बोलते हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा. सर आप वो बताते हो ना लास्ट में जो होता है मैंने ऐसा किसी कांस्टेंट. को कुछ नहीं बताया मैडम. सर अभिषेक सर ने बताया था. हाँ तो होगा बट मुझे नहीं आता.
बेसिकली कॉन्सेप्ट इज दैट, यार देखो मेरे को हिट एंड ट्रायल से ही निकालनी पड़ेगी। आई एम नॉट श्योर ऑफ द वैल्यूज। किसी ने निकाली है तो बता दीजिए, मैं बैठा के देख लेता हूँ। किसी ने निकाली है कोई वैल्यू? नो सर, बैठ ही नहीं नहीं तो रही वन, कुछ भी नहीं क्योंकि बैठ x ग्रेटर देन 1 है तो। तो निकली या नहीं निकली? नहीं निकली सर, नहीं 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 निकल सर, नहीं रही। निकली। छोड़ दो तो फिर क्या? ढूंढू क्या अभी बैठ के? नहीं नहीं सर, रहने दो। किसी की इच्छा है तो बोल सर दो, कर रहने लेंगे दो और सर, रहने दो। पक्का बाद में मत बोलना। देखो अभी भी इच्छा है तो इच्छा सर छोड़। -2 पे शायद बैटरी है। नहीं बैटरी। नहीं बैठी सर। कोई और तरीका होता है क्या इससे रैंडमली हिट एंड ट्रायल के अलावा? नहीं, नहीं मैम। तो मतलब ये वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है? हाँ हो सकती है, ठीक है सर। इसीलिए मैं मना कर देता हूँ, मत करो यार, छोड़ दे। ठीक है यार, देखो यस। प्रैक्टिकल अप्रोच में थोड़ा सा बिलीव ज्यादा करता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर मैं आप लोगों को ऐसा कोई तरीका भी सिखा भी दूंगा ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पे आप ये सब याद रख पाए, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आई एम मोर देन 100% श्योर कि आप में से 50% लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं था जो आज वाले एक SICI क्वेश्चन में काम आया। So I'm not here to, do things which might be attracting at this point of time, but on a later stage are of no use. मेरे को पता है कि ये नहीं होगा। So my personal opinion, better not to go for a question like this. In case if you want to, hit and trial is the only solution from my part. करके देखते रहने का। Depending upon the category of students that you belong to, you might be able to solve this. Clear है? यस Yes, sir. सर। ये देख क्या यस यस सर। सर। हटा देगा? यस हाँ सर। सर। चलो going ahead, next please. 5। बताने का है? नो सर। नो सर। Anyone? सर इसका नो सर। डायग्राम बता दो बस। अरे दिया नहीं है क्या आज? नहीं। आज दिया? हाँ तभी ज्योमेट्री इक्वेशन नहीं पूछ रहा। अरे वो अकेली बच्ची ज्योमेट्री इक्वेशन पूछती है। सर और भी बच्चे पूछते हैं, बताते नहीं हो उनको ये बोल के कि ज्योमेट्री हुआ नहीं है। अभी दिव्य ने ये विनय ने पूछा, बताऊंगा नहीं बताऊंगा? फालतू की बातें करा लो आपसे तो मैडम। सर आपको भी पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। 3 सर्कल्स। सर क्या बोल रहे हो, सॉल्व करके बताऊं? सर फिगर बना दो, मैं सॉल्व कर लूंगा। 3 circles with center ABC radii 1 to 3 centimeters respectively are drawn tangent to each other. Oh, the common tangent through points of contact element intersect in point P. What is the difference between the circumference and the interradius of the triangle form? क्या बकवास है भाई ये? By joining the center of these 3 circles. बताऊं? चलो देख लेते हैं। 1 सेकेंड रुक जाए। यार मेरे को इसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं लग रहा है इस वाली लाइन का। आपको किसी को लग रहा है? मतलब किसी को बेसिक ज्योमेट्री आती है थोड़ी बहुत? हाँ सर। सर इस लाइन का कोई रेलेवेंस है क्या? सर वही तो बन ही नहीं रहा था, कॉमन टैंजेंट कैसे करेंगे। ये 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल था, ये 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल था, ये 1 सेंटीमीटर का एक सर्किल था। इनके सेंटर को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल का इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच में डिफरेंस पूछा है सर। LMN अगर आपको पता करना है तो मैं बता देता हूँ, ये होगा L, ये होगा M, ये होगा N। बाकी इनका कोई क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके बिना भी हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है सर, मैं ट्राई कर लूंगा। है ना? हाँ नेक्स्ट प्लीज। 10। बताने का है किसी को? एनीवन? नो सर। यस सर। Two pipes of different metals have equal weight and mean diameters in the ratio 3:4. If the thickness are in the ratio 2:3 and densities are in the ratio this,
Weight varies directly with density, diameter, thickness, and length. Weight varies directly with हो गया था सर, सॉरी सर, सर हो वो गया था। किया था या सर, एक डाउट है इसमें। हाँ इसमें दो पाइप्स हैं, तो अपन है ना दोनों पाइप्स के लिए K1 K2 लेंगे या फिर K ही ये लेंगे? अगर रहेगा K मैम, ले सेम रहे हैं, रहेगा, कांस्टेंट सेम रहता है। हाँ बस ये। हाँ सर, यही कंफ्यूजन है सर, सेम क्यों रहेगा? मैडम कांस्टेंट तो सेम सेम क्यों ही है? रहेगा ना एक रिलेशन में। अच्छा ओके। हाँ सर, फिर नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट प्लीज, 19। बताने का है। नो सर। Yes, नो sir. सर। इसमें सर ऐसे एक बार बता दो। देख लेते हैं। ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन है। Yes, sir. यस अब बस सर। लड़ाई केवल इसकी है। हाँ है ना। Yes, हाँ sir. सर। लो x को 0 डाल दो, आंसर कितना आ रहा है? 1. 1, 0,1 एक पॉइंट मिल गया। 0,1 x को 1 डाल दो, आंसर कितना आ रहा है? -1 -1 1, -1 ये भी मिल गया। ये सॉरी, गलत कर दिया क्या? गलत कर दिया। हाँ सर, वो लाइन मिस बनेगी, ये बनेगा पॉइंट। 1, -1 ये पॉइंट मिल गया। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये लो कर दिया। फिर भी श्योर होने की इच्छा है तो x को 1/2 डाल दो। ये कितना हो गया? 1/2। माइनस 0. 1/0। 0 हो गया सर। ये 1/2 है, हाँ। ये 1 है। एरिया बताने का है, हाफ हाफ इंटू इंटू बेस इंटू इंटू 1/2 1/4.25 0.25। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। यानी मैंने किसको बताया था? सर मेरे हमने को बताया था। दीक्षा को। हाँ सर। तो मैडम फिर वापस हाँ क्यों सर। पूछा आपने? सर क्योंकि मैं मॉड था, कंफ्यूज हो गई थी सर। मैंने कोशिश करा था, मेरे दो आंसर आ रहे थे, 0.5 भी 0.25 भी। चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं, आपको बता दूं। ठीक है, हटा दूं मैम? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। नेक्स्ट प्लीज। सर खत्म हो गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। सही में? हाँ। चलो ठीक है। सो फाइनली विद दिस वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ FLT 13 मॉक कैट H3 क्वांट सेक्शन।